Hi all, welcome again. Okay, so yes, yeah. In the last session, we have covered the different testing terminologies and different types of testing, right? So in the last session, we have covered main basic types of testing. That one is the static testing and dynamic. Static totally belongs to the project documentation Sir, testing, and voice is breaking. others please confirm. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Okay, clear your voice. Yes, No, sir. it's breaking. Yes, sir. Okay, fine. Yeah, guys, please, yeah, try to, yeah, reconnect once. Okay. Yes. Okay. Thank you. Yeah. Okay. So yes. Okay. Fine. Yeah. So yes, in the last session we have covered some of the main testing types. That is the static and dynamic. Also, we have covered its subtypes, like what are the techniques we use under the static testing. That is review, walkthrough, and inspection, right? And when it comes to the dynamic, so there are basically two main types. One is WBT, another one is BBT. And under each type we have two different types. That is under WBT, unit testing and integration testing. And when it comes to the BBT, there are two kinds. One is system testing and another one is UAT. So within UAT, we have two types: alpha testing and beta testing. Okay, so this is on the like your static testing, dynamic testing, then it's sub different types, right? Then we have covered some of the few terminologies surrounding to testing. That is the QA, stands for quality assurance, which is a process related purely. QC stands for the quality control, checking of the actual software, and QA is stands for the quality engineering, which is nothing but developing a code for the testing of software. Later on, we have covered some of the terminologies in depth, like what is unit testing, who will be performing, right, and what are the different techniques. So unit testing basically done by the developer. It's a type of WBT, and these are the different techniques like basic path, loops, and mutation. Okay. And when it comes to the integration, so it is also part of WBT. On a coding level, developer used to perform this type of testing. And what are the techniques? So basically, two main important: incremental and non-incremental. Out of that, there are the subtopics under the incremental. These are the different approaches basically: bottom up, top down, and mix of both. That is the sandwich approach. Okay. Then next testing type we have covered, that is the system testing. Who will be performing? Here is our main role. That is the tester will be performing. Its type is the void box testing. And what are the different techniques we have seen? UI, that is the user interface level. Then we have functional, non-functional, and usability. And the fourth one we have covered through the slides. That is one, your UAT testing, right? That one is your UAT. And under UAT there are again two types. Okay, one is your alpha, one is your alpha testing, and another one is your beta testing, right? Beta testing. So yes, these are the different testing types and different approaches we have covered. Okay. Yeah, let me share the documentation. Yeah, so that. Okay, fine. I'll be just quickly sharing the presentation so that we can go further. Okay. Not visible, sir. Yeah, just sharing, not yet shared. Okay. Okay, fine. Is it visible, guys? Yes, sir. Okay, fine. Okay, so yeah, till here guys we have covered this testing types. Just now we have covered like we have basic understanding of what is user interface, right? Then we have functional testing, non-functional, and usability. These are the different types under the system testing. Okay, so up till now we have covered four different testing types. That is your first one is your unit testing. Okay, second one is your integration testing,
third one is your system testing, and fourth one is your user acceptance testing, right? So out of these are the two testing, like system testing and UAT testing comes under the tester scope, right? So out of that we are focusing on the system testing, okay? And within system testing there are the different areas on which we are performing testing. So out of that, some of the important areas I have mentioned over here: user interface testing, functional testing, non-functional testing, and usability testing. Apart from these guys, there are multiple types of testing as well, okay? But we need to focus on major part, okay? So let's go with the system testing and its type. So we'll be going onwards, we'll be yeah, looking for a more detail regarding each testing, okay? So system testing mainly focuses on below aspects, okay? Out of that, first one is your UI, that is the user interface testing. Another one focuses on your functionality, that is more important, functional testing. Third one is your non-functional testing, okay? And fourth one is your usability testing. You will be seeing one by one in a detail. Chalo. Let's see first one, UI, which is also stands for GUI, that is the graphical user interface, okay? GUI testing is nothing but your graphical user interface. Whatever visuals we are able to view on the website as well as on the mobile app side, this comes under your GUI testing, okay? So jo bhi GUI testing, in case of GUI testing you will see in detail, okay? GUI testing is the process of testing the user interface of application. Simple मीन्स जो भी आपका वेब एप्लीकेशन है, जो भी आपका मोबाइल एप्लीकेशन है, उसका फ्रंट फेस जो भी आपको दिख रहा है, राइट, दैट कम्स अंडर योर GUI टेस्टिंग. सो उसमें क्या क्या हम टारगेट करते हैं, क्या क्या चीजों के ऊपर फोकस करना है, विल सी, ओके? Graphical user interface includes all elements such as menus, okay, on the website as well as आपका जो भी मोबाइल एप्लीकेशन है उसमें डिफरेंट डिफरेंट मेनूज के ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं. देन चेक बॉक्स जिसे हम चेक कर सकते हैं, देन बटन्स जहाँ पे हम क्लिक करते हैं, राइट? देन देर आर डिफरेंट कलर्स, fonts, sizes of fonts, right? Different sizes. Then we have icons, then we have content, okay? And then we have images, some videos. So these are the different aspects, or we can say elements, which we need to focus under the GUI testing, okay? So here we are mainly focusing on the look and feel of the application, how the application is looking, right? How the website is looking. So basically here we are checking for the look and feel. Here we have mock-up screens or design, okay? So as we have seen into the SDLC model or different other models, so there are the design phase is there, right? So in the design phase, basically design team is making the high level design, low level design. So these designs also called as mock-up design screens, okay? So we are referring this here for testing scenario. One of the most important parameter, or one of the most important document we require for GUI testing, that is your mock-up screen or design documentation. And test cases for GUI before actual software is in hand. So it, this line means हमारे पास सॉफ्टवेयर बिल्ड नहीं है, राइट? जो भी वेब एप्लीकेशन है, जो भी मोबाइल एप्लीकेशन है, उसका एक्चुअली इम्प्लीमेंटेशन अभी तक नहीं हुआ है, फिर भी हम उसका लाइक रेफरिंग टू डॉक्यूमेंटेशन, लाइक हाई लेवल डॉक्यूमेंटेशन, लो लेवल डिजाइन डॉक्यूमेंटेशन, हम टेस्ट केसेस डिजाइन कर सकते हैं GUI टेस्टिंग के लिए, ओके? ओके, एंड लेटर ऑन जैसे ही हमारे पास सॉफ्टवेयर अवेलेबल होता है, तो उसके ऊपर हम क्रॉस वैलिडेट कर सकते हैं कि जो भी डिजाइन रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट में है वही सिमिलर इंटरफेस हमें एट एक्चुअल में दिख रहा है, राइट? सो फॉर परफॉर्मिंग टेस्टिंग, GUI टेस्टिंग, हमारे पास कौन कौन सी चेकलिस्ट होनी चाहिए? गाइस प्लीज कीप ऑन म्यूट, ओके? यस. सो या, while performing GUI testing हमारे पास कौन कौन सी चेकलिस्ट होनी चाहिए, उसके some of the parameters I have highlighted here. Let me zoom, okay? So let's see. Okay, so during GUI testing, जो भी आपका मोबाइल एप्लीकेशन रहेगा which is under test, जो भी आपका वेबसाइट है which is under test, so वहाँ पे हमें कौन कौन सी चीजों के ऊपर फोकस करना है during this testing. See, हमें उसमें चेकआउट करना है टेस्टिंग द साइज, पोजीशन, विड्थ ऑफ एलिमेंट्स, ओके?
जो भी आपका टेक्स्ट है, जो भी आपका हेडर्स है, जो भी आपके मेनूज है, जो भी आपके बटन्स है, या जो भी आपके इमेजेस, वीडियोस, डिफरेंट डिफरेंट जो भी वेब एलिमेंट्स हैं, उसका बेसिकली हमें साइज चेक करना है। उसका अलाइनमेंट मतलब वो लेफ्ट साइड में है, राइट में है, सेंटर में है, टॉप में है, बॉटम में है। दिस आर दी पोजिशंस। अगर हम विड्थ की बात करें, विड्थ एंड हाइट, राइट, सो पर्टिकुलर एलिमेंट्स की फ्रॉम द डिजाइन डॉक्यूमेंट, जो भी डिजाइन डॉक्यूमेंट रहेगा उसमें जो भी डिटेल्स मेंशन किए उसी के अकॉर्डिंग हमें वैलिडेट करना है। देन और क्या चेक कर सकते हैं हम? टेस्टिंग ऑफ एरर मैसेजेस दैट वर गेटिंग डिस्प्लेड, राइट, दैट आर गेटिंग डिस्प्लेड। सो बेसिकली क्या होता है ना, कोई भी मोबाइल एप्लीकेशन है, कोई भी वेबसाइट है, जब भी हम टेस्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल हम फेसबुक का एग्जांपल लेते हैं, राइट, वहां पे हमें लॉगिन डिटेल चाहिए, यूजर नेम, पासवर्ड। इन केस अगर हम वहां पे रॉन्ग यूजर नेम या रॉन्ग पासवर्ड पुटअप करते हैं तो हमें एरर मैसेज आता है, दैट इज आइदर पासवर्ड इज रॉन्ग और यूजर नेम इज रॉन्ग, please try again, right? So similar sort of message user को display हो रहा है नहीं, that also we checks under this testing. Then later on there are different sections of the screen, okay, so different section of the screen means आपने लॉग इन किया, सो आपने वेबसाइट को विजिट किया, दैट वन इज योर होम स्क्रीन। जैसे ही आपने पर्टिकुलर एप्लीकेशन में लॉग इन किया, सो दैट इज योर डैशबोर्ड। सो डिफरेंट डिफरेंट स्क्रीन्स होती है, वहां पे भी हम जीयूआई लेवल पे चेक कर सकते हैं। देन टेस्टिंग ऑफ फॉन्ट, मतलब जो भी आपका एप्लीकेशन है उसमें जो भी फॉन्ट है, राइट, वो रीडेबल है या नहीं, वो भी हम क्रॉस चेक करते हैं। नहीं तो कई वेबसाइट में या मोबाइल एप्लीकेशन में है ना, फॉन्ट इतना छोटा होता है कि हमें रीड करने में इश्यूज आते हैं, राइट, हम प्रॉपरली रीड नहीं कर पाते। तो वो भी पॉइंट हमें वैलिडेट करना है ड्यूरिंग टेस्टिंग, ओके। Later on it like we are checking for testing for the different resolution with the help of zooming and zoom out, okay। जब भी हम कोई मोबाइल एप्लीकेशन फॉर एग्जांपल ब्राउजर में जाते हैं, राइट, लाइक नाउडेज क्रोम ब्राउजर यूज करते हैं मोबाइल में भी और पीसी में भी, कंप्यूटर लैपटॉप में भी, राइट। तो वहां पे कोई एप्लीकेशन का अगर टेक्स्ट नहीं विजिबल है, इमेज प्रॉपर विजिबल नहीं है, तो हम ट्राई करते हैं उसको पिंच आउट या पिंच इन करके जूम करने के लिए, राइट। वो भी हमें चेक करना है कि डिफरेंट डिफरेंट रिजोल्यूशन पे हमें वो विजिबिलिटी किस तरह से मिल रही है, राइट। सो दैट आल्सो कम्स अंडर योर जीयूआई टेस्टिंग। देन जैसे हम टेक्स्ट है, डिफरेंट डिफरेंट आइकॉन्स, बटन्स है, उसके अलाइनमेंट की जो भी डायग्राम्स हमें है, हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, जो भी डिजाइन डॉक्यूमेंट अवेलेबल है, उसके हिसाब से हम क्रॉस वैलिडेट कर सकते हैं, ओके। देन टेस्टिंग ऑफ कलर एंड फॉन्ट, कलर फॉन्ट, जो भी फॉन्ट्स है उसके कलर भी वैलिडेट कर सकते हैं। देन वेदर इमेज क्वालिटी इज गुड और नॉट, वो भी हम चेक कर सकते हैं इमेज के लिए, क्योंकि हमें पता चलता है, राइट, कोई ब्लरी इमेज है, कोई लाइक डैमेज इमेज है, तो वो प्रॉपरली वहां पे लोड नहीं हो पाती, राइट। सो वो भी हम क्रॉस चेक कर सकते हैं। देन एज वेल हम स्पेलिंग के लिए भी चेक कर सकते हैं, कोई टाइपिंग मिस्टेक्स, स्पेलिंग मिस्टेक्स है क्या, वो भी हम चेकआउट कर सकते हैं अंडर दिस टेस्टिंग। सो यूजर, ओके, यूजर मस्ट नॉट गेट फ्रस्ट्रेटेड व्हाइल यूजिंग द सिस्टम। कोई भी यूजर पर्टिकुलर सिस्टम, दैट इज मोबाइल एप्लीकेशन या वेब एप्लीकेशन यूज कर रहा है, तो उसको एकदम इजी होना चाहिए, लाइक उसने रजिस्टर किया, लॉगिन किया और पर्टिकुलर वेब एप्लीकेशन को या मोबाइल एप्लीकेशन को वो सही से यूज कर पा रहा है, हर एक बटन पे प्रॉपरली क्लिक कर पा रहा है, राइट। सो दैट कम्स अंडर अवर जीयूआई टेस्टिंग और यूआई टेस्टिंग, दैट इज द यूजर इंटरफेस। यहाँ पे हम यूजर इंटरफेस एट्रैक्टिव है या नहीं वो भी चेक करते हैं, राइट। देन स्क्रॉल बार्स प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं नहीं, राइट। अभी जैसे फॉर एग्जांपल ये डॉक्यूमेंट है, तो मैं स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन कर पा रहा हूँ, राइट। इन अ सिमिलर मैनर आप अगर मोबाइल में है तो आप भी स्क्रॉल अप करते हो, स्क्रॉल डाउन करते हो। पीसी में भी जो वेबसाइट है उस पे भी हम स्क्रॉल अप या स्क्रॉल डाउन करते हैं, वो भी स्मूथ होना चाहिए, वो भी प्रॉपरली वर्क करना चाहिए, राइट। सो दैट आल्सो वी चेक। देन टेस्टिंग डिसेबल फील्ड्स इफ एनी, मतलब फॉर एग्जांपल हमारा जो भी वेब एप्लीकेशन या मोबाइल एप्लीकेशन है उसमें पर्टिकुलर फील्ड डिसेबल होता है, राइट। वो यूजर उसको एडिट नहीं कर सकता विद अ पर्टिकुलर परमिशन, या कोई फीचर हम ऐसा पुटअप करते हैं ना जो इन फ्यूचर डेवलप होने वाला है, बट उसके लिए हम वहां पे कंपोनेंट या वेब एलिमेंट अलोकेट करते हैं, राइट। सो इन दैट सिचुएशन वो भी हम क्रॉस वैलिडेट कर सकते हैं। देन साइज ऑफ इमेजेस हो गया, देन आपका हेडिंग हो गया,
फॉर एग्जांपल कोई भी वेब पेज है उसका हेडिंग प्रॉपर होना चाहिए, मेन्यूज प्रॉपर दिखने चाहिए, राइट? सो दैट पार्ट आल्सो वी कैन चेक। देन टेस्टिंग ऑफ कलर ऑफ हाइपरलिंक। सो इसका मीनिंग क्या है? कोई भी आपके वेबसाइट के ऊपर लिंक है तो हम जब क्लिक करते हैं ना तो उसका कलर चेंज हो जाता है, राइट? सो अगर वो आपके रिक्वायरमेंट का पार्ट है तो वो भी हमें क्रॉस चेक करना है। देन टेस्टिंग ऑफ यूआई एलिमेंट, दैट इज यूजर इंटरफेस एलिमेंट, जिसमें बटन्स आते हैं, आपके टेक्स्ट बॉक्स आते हैं, टेक्स्ट एरिया आते हैं, चेक बॉक्स आते हैं, रेडियो बटन्स, ड्रॉप डाउन्स, लिंक्स। ओके, दीज आर दी डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट ऑफ यूआई। मतलब आपका मोबाइल का यूआई रहने दो या आपका वेबसाइट का यूआई रहने दो, ऑन बोथ साइड आपको ये सारी चीजें चेक करनी है अंडर योर जीयूआई टेस्टिंग। ओके, सो इसमें हम डिफरेंट डिफरेंट ऐसे सिनेरियोज लेके, डिफरेंट डिफरेंट वेब पेजेस लेके हम क्या बना सकते हैं, इसके चेक लिस्ट बना सकते हैं, टेस्ट केसेस बना सकते हैं, उसी को हम आगे जाके एग्जीक्यूट कर सकते हैं, राइट? So these are the points, these are the few important points which we need to cover under GUI testing. Okay. So yeah, this is on the GUI testing side. So ये सारी चीजें हमें क्रॉस वैलिडेट करनी है विद रिस्पेक्ट टू आपकी डिजाइन डॉक्यूमेंटेशन। ओके, ये सारी चीजें वहां पे मेंशन रहेगी, आपके रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन में भी मेंशन रहेगी, राइट? सो या लेट मी resume again. Okay, let me focus to the 100%. Okay, fine. Guys, stop the annotation. Let me stop from here itself. Okay. Let me reshare the screen. Okay. Okay, fine. Okay. So under GI testing, we have covered like which all points we can cover up, right? So yeah, yeah. With in a similar manner, we can also like see in a similar manner we can also perform a functional testing. So here we need to understand which all points we need to cover under functionality testing. हमने GUI साइड पे, यूजर इंटरफेस साइड पे तो बहुत सारे पॉइंट पुट अप कर लिए, बहुत सारे पॉइंट देख लिए, राइट? मतलब जो हमें विजिबल है टू आवर ह्यूमन आइज, राइट? वो पॉइंट पे हमें मेनली फोकस करना है अंडर द GUI टेस्टिंग, जो भी हमें दिख रहा है ऑन वेबसाइट, ऑन मोबाइल एप्लीकेशन। ओके, बट इन केस ऑफ फंक्शनल टेस्टिंग हमें एप्लीकेशन का फंक्शनलिटी, वेबसाइट का फंक्शनलिटी पता होना चाहिए, जो भी आपका वेब एप्लीकेशन है उसका, राइट? उसके लिए आपको जो भी रेफर करना है, दैट इज द डिफरेंट डिफरेंट डॉक्यूमेंटेशन हमें रेफर करना पड़ेगा, राइट? बिजनेस रिक्वायरमेंट हो गया आपका, ESRS हो गया, डिजाइन डॉक्यूमेंटेशन हो गया, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द फंक्शनलिटी ऑफ एप्लीकेशन। ओके, सो फंक्शनल टेस्टिंग में हम बेसिकली मेन क्या चेक करते हैं, व्हाट इज द फंक्शनलिटी ऑफ particular application. Okay, the core behavior of application is nothing but the functionality of application, right? For example, we have seen one of the famous example, that is the calculator app example. Okay, what is the main functionality of calculator app? To have addition, subtraction, multiplication, division. These are the basic arithmetic operation which we are performing using the calculator, right? So that is what the core behavior for calculator application. In a similar manner, आपका जो भी वेब एप्लीकेशन या मोबाइल एप्लीकेशन होगा उसका हर एक का पर्टिकुलर फंक्शन रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम व्हाट्सएप की नाउअडेज बात करते हैं तो व्हाट्सएप इज अ कम्युनिकेशन मीडियम, राइट? देन अगर हम फेसबुक की बात करते हैं तो इट्स अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम कनेक्ट कर सकते हैं विद एक दूसरे के साथ, फ्रेंड्स के साथ। अगर हम लिंक्डइन की बात करते हैं तो वहाँ पे हम प्रोफेशनल नेटवर्क बना सकते हैं, राइट? लाइकवाइज डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन, डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन की फंक्शनलिटीज अलग होती है। एज अ पार्ट ऑफ टेस्टिंग टीम हमें वही फंक्शनलिटी चेक करनी है विद रिस्पेक्ट टू अवर प्रोजेक्ट। ओके, तो हम बेसिकली विद इन दिस फंक्शनल टेस्टिंग हम कौन कौन से फीचर पे चेकआउट करते हैं, कौन कौन से फीचर देखते हैं? तो उसमें हम रिलेटेड टू ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी टेस्टिंग देखते हैं, पर्टिकुलर जो भी एलिमेंट है आपका, ऑब्जेक्ट है, उसकी क्या प्रॉपर्टी है, राइट? अगर इन केस बटन है तो बटन पे हमें क्लिक करना पड़ता है, राइट? सो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स है, उसके हम प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे इन अ फंक्शनल टेस्टिंग। यहाँ पे सम ऑफ द पार्ट आता है आपका डेटाबेस का भी, ओके, फंक्शनलिटी के रिलेटेड। एरर हैंडलिंग का पार्ट आता है, जो भी आपके एरर शोकेस करना है, इनवैलिड पासवर्ड, यूजर नॉट ऑथराइज, वो भी पार्ट इसमें कवर अप होता है। आपके जो भी डिफरेंट कैलकुलेशंस आते हैं, मैनिपुलेशंस आते हैं, फॉर एग्जांपल
आप अगर फ्लिपकार्ट का या कोई भी शॉपिंग वेबसाइट विजिट करते हो तो वहां पे आपने देखा रहेगा कि डिस्काउंट चलते रहते, राइट? सो वहां पे डायनेमिकली जो भी कोड में चेंजेस होते रहते हैं, जो भी ऑफर्स होते हैं, वो स्विच मतलब वहां पे पूरा सब कुछ खेल कैलकुलेशन के ही, राइट? अगर बैंक एप्लीकेशन की बात करें तो वहां पे सब कुछ ट्रांजेक्शन डेटा है, तो हमारा एप्लीकेशन अगर ट्रांजेक्शनल डेटा इन्वॉल्व करता है, मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स परफॉर्म होते हैं, तो वो भी एज अ फंक्शनल टेस्टिंग पार्ट हम कवर करते हैं। देन लिंक एग्जिस्टेंस एंड लिंक एग्जीक्यूशन, जो भी लिंक अवेलेबल है हमारे पर्टिकुलर वेब पेज पे, मोबाइल पे, उस पे अगर हम क्लिक करते हैं तो वो पर्टिकुलर लिंक को रीडायरेक्ट होना चाहिए या पर्टिकुलर लिंक ओपन होना चाहिए, वो भी क्रॉस चेक करते हैं हम एज अ पार्ट ऑफ फंक्शनल टेस्टिंग। And one of the important that is cookies and sessions. Okay, so आप अगर देखते हो कोई भी वेबसाइट आप विजिट करते हो ऑन वेबसाइट विजिट करते हो ऑन अ पीसी मोबाइल, तो वो नाउअडेज आपको है ना वहाँ पे एक ऑप्शन अवेलेबल आता है अलाउ और मैनेज सेटिंग करके फॉर कुकीज एंड सेशंस। सो आपका जो भी पर्टिकुलर सर्च हिस्ट्री, जो भी आपका डेटा है ना, वो लोकली ऑन अ ब्राउजर साइड, क्लाइंट साइड स्टोर होता है इन ऑर्डर टू हैव मोर फ्रिक्वेंट एक्सेस टू डेटा। मतलब आप आपने अगर एक चीज ऑब्जर्व की होगी ना आप अगर फॉर एग्जाम्पल कोई मोबाइल परचेस करना है आपको, आपने फ्लिपकार्ट पे सर्च किया या कोई अदर वेबसाइट अमेजोन पे सर्च किया, राइट? तो आप अगर बाद में भी लॉग इन करते हो ना, तो सिमिलर सॉर्ट ऑफ प्रोडक्ट आपको हाईलाइट किए जाते हैं, आपको रिकमेंड किए जाते हैं। सो बेसिकली आपका जो भी बाइंग बिहेवियर है आपका, जो भी आप कीवर्ड सर्च करते हो ना, उसी के अकॉर्डिंगली बेसिकली आपका डेटा स्टोर होता है एंड बेस्ड ऑन दैट आपको रिजल्ट्स व्यू होते हैं, राइट? सो या these are the some highlights on the functional testing part। ये चीजें हम विद इन अ फंक्शनल टेस्ट देखने वाले हैं, राइट? एंड अगर हम डिटेल में बात करते हैं रिलेटेड टू ईच टॉपिक, गाइस प्लीज कीप ऑन मिनट, ओके। अगर हम डिटेल में बात करते हैं फॉर फंक्शनल टेस्टिंग, क्योंकि हमारा मोर इन्वॉल्वमेंट रहता है विद इन अ फंक्शनल टेस्टिंग, क्योंकि कोई भी ऐप दिखने के लिए कितना भी अच्छा हो, राइट, बट उसका अगर फंक्शनलिटी सही से नहीं चल रहा तो देर इज नो यूज, करेक्ट? अगर हम कैलकुलेटर बेसिक ऐप की बात करते हैं, वहां पे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, वहां उसी में अगर कुछ इश्यू है, वही प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर रहे, तो हम विल नॉट गो फॉर कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस, राइट? सो इसीलिए हमें मेनली फोकस करना पड़ता है ऑन अ फंक्शनल साइड। सो लेट्स सी related to object property testing, okay? So it checks for object present on the application. For example, ऑब्जेक्ट रेफर्स टू आपके बटन्स हो गए, आपके लिंक्स हो गए, राइट, आपके टेक्स्ट बॉक्स हो गए, जो भी चीज में आप डेटा इंटर कर सकते हो, जो भी चीज पे आप क्लिक कर सकते हो, राइट? दीज आर दी मेन कॉमन पैरामीटर्स वी आर चेकिंग। फॉर एग्जांपल, आपको पर्टिकुलर एक टेक्स्ट बॉक्स दिया है जहाँ पे आपको यूजर नेम पुट अप करना है, राइट? पर्टिकुलर टेक्स्ट बॉक्स इनेबल है या डिसेबल है, वो हम चेक कर सकते हैं। वो पर्टिकुलर टेक्स्ट बॉक्स विजिबल है क्या एंड यूजर को, वो भी चेक कर सकते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, वहाँ पे इन यूजर नेम लिखा होता है या कोई भी फॉर्म अगर फिलअप करते हैं तो पर्टिकुलर फील्ड डिसेबल होती है, तो हम उसमें डेटा इंटर नहीं कर पाते, राइट? सो वो भी एज अ पार्ट ऑफ फंक्शनल टेस्टिंग हमें चेक करना है। कोई वहां पे अगर यूजर नेम दिया है और यूजर नेम एंटर करने के लिए हमें जगह नहीं है, राइट? सो दैट शुड नॉट बी आल्सो द केस, वो भी नहीं होना चाहिए, राइट? तो वो भी हम चेक करते हैं कि पर्टिकुलर यूजर नेम तो हमने बोला है कि प्लीज एंटर योर यूजर नेम, बट वहां पे यूजर नेम एंटर करने के लिए टेक्स्ट बॉक्स ही नहीं है, राइट? तो यूजर एंड यूजर को कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे ही यूजर नेम पुट अप करना है? सो वो पार्ट भी हम कवर करते हैं अंडर ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी टेस्टिंग, ओके। देन नेक्स्ट वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टेस्टिंग पैरामीटर आता है ऑन फंक्शनल लेवल साइड, डेटाबेस टेस्टिंग, या इसी को हम बैकएंड टेस्टिंग भी बोल सकते हो, ओके। सो यहाँ पे मेनली चेक क्या होता है? चेकिंग डेटाबेस विथ रिस्पेक्ट टू यूजर ऑपरेशंस। इट सिंपली मीन्स, आप कोई भी एक एग्जांपल ले लो। ऑडियो नहीं आ रहा, आवाज नहीं आ रहा। हेलो हेलो। ब्रेक हो रहा सर बीच में आपका आवाज। हेलो, अभी आ रहा है? हाँ आ लेट रहा है मी, सर। ओके ओके, लेट मी स्टॉप द स्क्रीन एंड रीशेयर वंस, ओके। Now audible, guys?
ओके ओके फाइन, ठीक है चलो। देखो विद इन अ डेटाबेस टेस्टिंग ना देर आर डिफरेंट फंक्शंस, वी डिफरेंट फंक्शनलिटीज आर देयर, ओके। सो we can check multiple parameters based on our project scope, okay, because in case of each and every project na, for a testing scope is defined, so we need to test accordingly, right? We cannot test randomly. Based on the requirement only we'll be testing the application, okay. Okay fine, sure. So checking database with respect to user operation, for example हम कोई भी ई कॉमर्स एप्लीकेशन की बात करते हैं या कोई भी एप्लीकेशन की, तो वहां पे फॉर एग्जांपल आप ऑनलाइन शॉपिंग के लिए गए, पर्टिकुलर प्रोडक्ट चूज किया आपने, पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए पेमेंट भी किया, राइट? नाउ यू आर वेटिंग फॉर द प्रोडक्ट। देखो एज अ एंड यूजर आपने फर्स्टली तो वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन किया, देन आपने आपके यूजर नेम और पासवर्ड से लॉगिन किया, देन आपने प्रोडक्ट सर्च किया, देन आपने जो भी प्रोडक्ट था वो कार्ट में ऐड किया, राइट? ओके जैसे ही वो प्रोडक्ट आपने कार्ट में ऐड किया और दूसरे भी प्रोडक्ट आपने चेकआउट कर लिए, बट आपको कोई प्रोडक्ट पसंद नहीं आया, इसीलिए जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट आपने सिलेक्ट किया था वही प्रोडक्ट आपने परचेस किया। ये जितने भी स्टेप्स हुए ना, हर एक स्टेप्स के अक्रॉस कुछ ना कुछ डेटा डेटाबेस में रिफ्लेक्ट होता है, डेटाबेस में स्टोर होता है, राइट? या जो भी डेटा आप फ्रंट एंड पे, जो भी डेटा आप वेबसाइट या मोबाइल एप्लीकेशन पे देख रहे हो ना, रिस्पेक्टिव डेटा आपको कहीं ना कहीं से फेच होता है बेसिकली, ओके। उसी चीज के लिए हम है ना डेटाबेस टेस्टिंग करते हैं। तो उसमें मेनली इन्वॉल्व होते हैं आपके ऑपरेशंस, दैट इज डेटा मैनिपुलेशन ऑपरेशंस इन्वॉल्व होते हैं। इंसर्शन मतलब कोई भी डेटा को ऐड करना है, कोई भी डेटा को ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उसी को अपडेट करना है, जो भी डेटा है उसको इनकेस अगर डिलीट करना है या सिलेक्ट करना है, दीज आर द डेटाबेस ऑपरेशंस, ओके। इन अपकमिंग सेशन वी विल बी सीइंग इनटू द डिटेल फ्रॉम डेटाबेस साइड। अभी हम सिर्फ फंक्शनल पार्ट पे फोकस कर रहे हैं यहाँ पे। So within database testing, gray box is also one of the testing type. Okay, gray box is also one of the testing type. Gray box is nothing but combination of your white box and black box testing. So for performing gray box testing, you should know the coding knowledge. Okay, testers should have coding knowledge. Okay, so इसीलिए ना dedicated database testers की openings होती है, right? इसी इस पोजीशन के लिए आपको इन डेप्थ डेटाबेस का नॉलेज होना चाहिए, ओके। सो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स है गाइस, ओके, रिलेटेड टू डेटाबेस। हम इसका जब रिलेवेंस आएगा ना, तो ये इसके इन डेप्थ पॉइंट्स है, ओके। सो एज ऑफ नाउ फ्रॉम द डेटाबेस साइड, आप ऑन अ फंक्शनल लेवल हमें समझना है कि जो भी ट्रांजेक्शन्स हम या जो भी ऑपरेशंस हम फ्रंट एंड साइड दैट इज यूआई साइड पे परफॉर्म करेंगे, हर एक ऑपरेशंस आपका कहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा? ऑन अ डेटाबेस। जो भी डेटा आप ऐड करोगे, डिलीट करोगे, अपडेट करोगे, राइट, पर्टिकुलर डेटा आपका डेटाबेस में रिफ्लेक्ट होता रहेगा। सो या दिस इज ऑन द डेटाबेस टेस्टिंग साइड। अभी हम जस्ट ओवरव्यू कर रहे हैं, राइट, रिलेटेड टू इस टर्मिनोलॉजी। देन अगर हम एरर हैंडलिंग की बात करते हैं, तो एरर हैंडलिंग में जैसे अभी हमने प्रीवियसली डिस्कस किया, टेस्टर वेरीफाइज एरर मैसेजेस व्हाइल परफॉर्मिंग इनकरेक्ट एक्शन इनटू द एप्लीकेशन। आप कोई भी लॉगिन कर रहे हो, कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर रहे हो, तो वहां पे अगर रिक्वायर्ड डिटेल आपने नहीं पुटअप किया है, कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन पुटअप की है, मोबाइल नंबर के जगह पे आपने कुछ कैरेक्टर्स डाले हैं, राइट, लेटर्स डाले, तो वहां पे भी आपको एरर मैसेज आता है। या ईमेल आईडी की जगह @ पुटअप नहीं किया, तो वहां पे भी आपको मतलब कई एप्लीकेशंस में आपको एरर्स मैसेज आते हैं। एज अ पार्ट ऑफ एरर हैंडलिंग हमें वो चेक करना है, राइट। देन एरर मैसेज शुड बी रीडेबल एंड सिंपल टू अंडरस्टैंड, मतलब जो भी एरर्स शो हो रहे हैं ना गाइस, वो एरर्स एकदम इजी होने चाहिए। फॉर एग्जांपल योर पासवर्ड इज नॉट वैलिड, यू हैव एंटर इनकरेक्ट पासवर्ड, मतलब हमें उस एरर मैसेज से कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए एंड यूजर को, और वो भी क्लियर फॉर्मेट में, राइट। वो भी हम चेक करते हैं एज अ पार्ट ऑफ एरर हैंडलिंग टेस्टिंग। देन अगर हम Sir, कैलकुलेशंस hello. की, Voice, sir. हेलो नाउ, Hello. Yes, यस, sir. Right. Hello. Yes. ओके 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 फाइन, Hello. यस, Hello. हाँ यस मैम। Sir, Poonam here from Techno Brilliant. Just allow me 5 minutes if I can take a break on in this.
Yes, okay. So yeah, guys, we are discussing about the calculations or manipulation type of testing. Guys, we just need to have these words handy with, right? Because जब भी हमें question आता है ना, what are the different testing you are performing, or what are the different types under the functional testing, तो हमें just उसके types पता होने चाहिए और types का relevance पता होना चाहिए. Guys, please be on mute. Okay, ठीक है. एज ऑफ नाउ आपको ये पूरा इन डिटेल या इन डेप्थ चेकआउट नहीं कर रहा है, राइट? जब आप धीरे धीरे चीजें एक्सप्लोर करने लगोगे ना विद इन अ प्रोजेक्ट, तो आपको पता चलती रहेगी. ओके, सो ऑन अ कैलकुलेशन साइड, टेस्टर शुड वेरीफाई कैलकुलेशन. सो उस केस में हम क्या क्या चेकआउट करते हैं, देखिए. इन केस ऑफ बैंकिंग एप्लीकेशन है, तो वहां पे मेनली हमें कैलकुलेशन पे फोकस करना है. बिकॉज देर इज इफ देर इज एनी स्मॉल चेंज in a number or in logic, there will be a huge impact, right? So we need to test that. uh, we need to test that for multiple combinations of calculation. वही सेम goes to आपका ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, जो जहाँ पे भी आपके कैलकुलेशंस पिक्चर में आते हैं ना, वहाँ पे हमें कैलकुलेशन साइड पे फोकस करना पड़ता है, राइट? सो दैट कम्स अंडर द कैलकुलेशन टेस्टिंग. ओके, देन लिंक एग्जिस्टेंस एंड लिंक एग्जीक्यूशन. Okay, so basically, as of now, itne like will cover this part as well. Link existence means जो भी लिंक है particularly, right? वो क्लिकेबल होने चाहिए, वो प्रॉपरली रिसोर्स की तरफ, मतलब पर्टिकुलर वेबसाइट के वेब पेज की तरफ रिडायरेक्ट होने चाहिए, राइट? और उसमें कुछ ब्रेकेज वगैरह नहीं होना चाहिए. ओके, तो लिंक किस प्रकार के होती है, देखिए. इंटरनल लिंक्स होते हैं आपके, एक्सटर्नल लिंक्स होते हैं, ब्रोकन लिंक्स होते हैं. इंटरनल लिंक्स मींस आपने क्लिक किया वेब पेज पे, विद इन अ सेम वेब पेज आपका दूसरा वेब पेज ओपन हो गया, राइट? आपने एक्सटर्नल लिंक मींस आपने किसी लिंक पे क्लिक किया और आपको वो पर्टिकुलर लिंक रीडायरेक्ट करता है. फॉर एग्जांपल, आप किसी प्रोडक्ट का शॉपिंग कर रहे हो, राइट? एंड जब भी आप पेमेंट करते हो, तो देखिए आप पर्टिकुलर बैंक का जो भी गेटवे है, पेमेंट गेटवे, पर्टिकुलर वेब पेज पे आप रिडायरेक्ट हो जाते हो, राइट? एंड जैसे ही आपका पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट होता है, वापस से आप आपके मेन एप्लीकेशन पे आते हो, राइट? सो वो दैट वन इज योर एक्सटर्नल लिंक. एंड ब्रोकन लिंक्स मतलब जो भी लिंक्स पुट अप किए जाते हैं, राइट? वो फ्यूचर स्कोप के लिए होते हैं, एज ऑफ नाउ उनका कुछ स्कोप नहीं होता विद इन द एप्लीकेशन. ओके, सो these are the different types of links available on the website which we need to test as a part of functional testing. Okay, and one of the important, guys, cookies and sessions, because nowadays you'll be seeing that options like accept cookies on the browser, okay, web browser, or change the setting or decline the cookies, right? So cookies are temporary file created by browser while browsing the pages through internet. Okay. सो हम जब भी इंटरनेट पे पर्टिकुलर वेबसाइट या वेब पेज को एक्सेस करते हैं, तो उसका जो भी डेटा है ना, वो टेम्परली स्टोर किया जाता है विद इन द ब्राउजर ओनली. So we are testing whether browser cookies are present or not. Some of the times क्या होता है, देखिए, आप जब भी लॉग इन करते हो किसी एप्लीकेशन में, तो आप सेव करके रखते हो डिटेल्स, राइट? बट इन केस क्या होता है ना, आपके जो डिटेल्स आपने पुटअप किए थे, बाय चांस ऑटो सेव के लिए आप गलत डिटेल्स कुछ बाय मिस्टेकली वहां पे स्टोर हो गए, तो आप ट्राई करते हो उसी गलत डिटेल के साथ, तो आपको बार बार इनकरेक्ट यूजर नेम, इनकरेक्ट पासवर्ड इश्यू आता है. तो हम क्या करते हैं चेकआउट, कि एक बार कुकीज या जो भी ब्राउजर की हिस्ट्री है, सेशन हिस्ट्री है, उसको डिलीट करके चेक करते हैं, तो वर्क होता है, राइट? सो इन दैट सिनेरियो वो भी पिक्चर में आता है. देन सेशंस आर मेनली क्रिएटेड फ्रॉम सर्वर साइड फॉर सिक्योरिटी पर्पस. सेशंस क्या होते हैं, बेसिकली कोई भी आप अगर बैंकिंग या सिक्योर डोमेन का एप्लीकेशन लेते हो, बैंकिंग का ही ले लो एज ऑफ नाउ, तो वहां पे आपका सेशन टाइम अलोकेट होता है. आपने लॉगिन किया आपके पर्सनल अकाउंट को, इंटरनेट बैंकिंग को, और वहां पे वेट किया लाइक 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, तो वो पर्टिकुलर वेब एप्लीकेशन है ना, ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो जाता है, राइट? सो दैट इज नथिंग बट द सेशंस. ओके, सो एज अ पार्ट ऑफ टेस्टिंग हमें वो भी टाइम वैलिडेट करना पड़ता है. हाँ, लाइक रिक्वायरमेंट में ऑलरेडी मेंशन होता है कि सेशन टाइम इज 10 मिनट, सेशन टाइम इज 2 मिनट, 5 मिनट, जो भी है, तो उसके सराउंडिंग हमें क्रॉस चेक करना पड़ता है. Then session will expire after some time. Okay, if we are doing nothing, like no any actions. So this is on the
cookies and session size. Okay, so under, see guys, under functional testing there are a lot of more stuff. So out of that, most important parameter I have listed here, like object property testing, database हो गया आपका, error कौन कौन से error आपको show हो रहे हैं, then calculation कुछ involve है क्या, then link exist है क्या, cookies and sessions. So these are the parts of functional testing. Okay, and we have covered somewhat into the details, right? Then third terminology comes in a picture under, we are covering these topics, हम जो भी अभी topics देख रहे हैं, it comes under the system testing और as a tester profile हमारा ये role है basically. Okay, और जो भी project का scope रहेगा ना, उसमें clearly mention होता है कि हमें functional testing पे focus करना है, non functional पे करना है, या GUI part पे करना है, या other type of testing पे focus करना है. Okay, so particular application के हिसाब से हमें test डॉक्यूमेंट बनाने पड़ते हैं. ओके, सो हम अभी फोकस करते हैं ऑन नॉन फंक्शनल टेस्टिंग. सो वंस एप्लीकेशन फंक्शनलिटी स्टेबल मींस जो भी उसका कोर बिहेवियर है, जो भी उसका कोर एप्लीकेशन फंक्शनलिटी है, उसके हिसाब से हम ट्राई करते हैं कि वो प्रॉपरली फंक्शनल है क्या. जैसी फंक्शनलिटी हम चेक करते हैं ना, देन विल लुक फॉर द नॉन फंक्शनलिटी साइड. अभी नॉन फंक्शनलिटी में कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व होती है, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपका परफॉर्मेंस, एप्लीकेशन की सिक्योरिटी, एंड वो कितना लोड हैंडल आउट कर सकता है, राइट. ओके, सो these are the different areas we can test under the non functional testing. So इसमें अगर हम बात करते हैं, that one comes under, first one comes under, that is the performance testing. उसी में भी अगर हम सब टेस्टिंग टाइप्स की बात करते हैं, तो लोड हो गया, ट्रेस हो गया, एंड वॉल्यूम हो गया. लोड स्टैंड्स फॉर आपने कितने नंबर ऑफ यूजर्स एक्सेस कर रहे हैं, उनका पर्टिकुलर लोड कितना आ रहा है एप्लीकेशन पे के ऊपर, राइट. ट्रेस टेस्टिंग मतलब आपके कितने इंस्टेंटली यूजर्स ऐड हो रहे हैं या रिड्यूस हो रहे हैं फॉर द एप्लीकेशन, एंड वॉल्यूम मींस टोटल नंबर ऑफ यूजर्स. ओके, सो परफॉर्मेंस पे वही चेक होता है. इसी के लिए स्पेसिफिक टूल्स भी होते हैं गाइस, ओके, फॉर टेस्टिंग. So with the help of these tools, performance is measured for your web application and mobile application. इसी के लिए separate testing का profile भी होता है, that is performance tester. Okay, then security testing, this is also one of the special type of non-functional testing. So इसी में, इसमें भी हमें special skill चाहिए for performing security test. Okay, then recovery testing we can do, like for example, सर आपका वॉइस. हाँ guys, can someone please confirm, आ रहा है यस आवाज यस आपको? यस. ओके, ठीक है, फाइन. ओके, सो रिकवरी टेस्टिंग में सिंपल है, कोई भी आपका वेब एप्लीकेशन है या कोई भी मोबाइल एप्लीकेशन है, ड्यू टू सम रीजन अनएक्सपेक्टेडली वो लाइक स्टॉप हो रहा है, डिसेबल हो रहा है, या फंक्शन करना, वर्क करना स्टॉप हो रहा है, तो वो रिकवर हो रहा है या नहीं. फॉर एग्जांपल, आप गूगल क्रोम पे कोई वेबसाइट एक्सेस कर रहे हो, यूट्यूब एक्सेस कर रहे हो, फेसबुक एक्सेस कर रहे हो, जैसे ही आपका इंटरनेट कट होता है, तो देखिए आपका पर्टिकुलर सेशन स्टॉप होता है, या पर्टिकुलर ब्राउजर वर्क करना स्टॉप कर देता है, या आपने, आपका इंटरनेट का सेशन चल रहा था, आपने कोई वेबसाइट ओपन किया था और आपने पर्टिकुलर ब्राउजर क्लोज किया, जैसे ही आप रील ब्राउजर को रिलॉन्च करते हो, तो वहां पे आपको पूछता है, डू यू वांट टू कंटिन्यू और डू यू वांट टू रिस्टोर द सेशन, राइट. सो दैट कम्स अंडर योर रिकवरी टेस्टिंग. वो भी हमें क्रॉस चेक करना पड़ता है एज अ पार्ट ऑफ नॉन फंक्शनल टेस्टिंग. कंपेटेबिलिटी में अगर हम बात करते हैं, तो इसमें भी मल्टीपल टाइप आते हैं. अगर मोबाइल एप्लीकेशन की बात करते हैं, तो वहां पे भी डिफरेंट मोबाइल के मॉडल्स है, राइट. देन डिफरेंट वर्जन्स आते रहते हैं, राइट. सो उसके अकॉर्डिंग हमें चेक करना पड़ता है. अगर हम वेब एप्लीकेशन की बात करते हैं, तो वहां पे डिफरेंट ब्राउजर्स है, आपके क्रोम हो गए, राइट, आपका फायरफॉक्स हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर, सफारी. सो डिफरेंट ब्राउजर्स पे भी हम क्रॉस टेस्टिंग उसका कंपेटेबिलिटी चेक कर सकते हैं. ऑन कॉन्फ़िगरेशन साइड उसका इंस्टॉलेशन, अनइंस्टॉलेशन, वो भी पार्ट चेक कर सकते हैं एज अ नॉन फंक्शनल. सैनिटी एंड गार्बेज टेस्टिंग मतलब हमें सैनिटी एंड गार्बेज टेस्टिंग मतलब ये रिक्वायरमेंट का पार्ट था नहीं, फिर भी कुछ ना कुछ एडिशनल फंक्शनलिटीज फ्रॉम डेवलपमेंट टीम ने उसमें ऐड अप किया है, तो वो भी हमें क्रॉस चेक करना पड़ता है एज अ नॉन फंक्शनल टेस्टिंग पार्ट. ओके, सो these are the some of the important parameters which we need to consider under your non-functional testing part. Okay, so yeah, so
Yes, guys, this is on the non-functionality part. Yeah, let me share once. Okay, I think screen is stop. Okay. Okay, so till now we have covered the four main testing types under the system testing. One is your GUI testing, another one is your functional testing, third one is your non-functional, and the fourth one type is your usability testing. Okay, so we'll wrap up this into the notes as well. Okay, so that you'll have idea. Okay, so fourth type is usability testing. During the testing, okay, till now we have seen like GUI, मतलब front end side पे हमने देख लिया कि बटन सही से वर्क हो रहा है, क्लिक हो रहा है, राइट, एरर मैसेज शो हो रहा है, फॉन्ट साइज ठीक से है, कलर भी ठीक से है, फॉर्मेट सही है. देन हम चेक करते हैं फंक्शनल के लिए कि लॉगिन प्रॉपरली वर्क हो रहा है, रजिस्ट्रेशन हो रहा है, देन हर एक फीचर मॉडल डिफरेंट जो भी है वो प्रॉपरली वर्क हो रहा है, राइट. ओके, देन जैसे ही हम फंक्शनल साइड पे चेक करते हैं, वो टेस्ट करते हैं, उसके बाद आता है नॉन फंक्शनल की, मतलब कितने नंबर ऑफ यूजर्स एट अ टाइम एक्सेस कर सकते हैं, कहीं पे क्रैश हो रहा है क्या एप्लीकेशन, कहीं पे लिंक ब्रेक हो रहा है क्या पर्टिकुलर, राइट, सेशन प्रॉपरली रिस्टोर हो रहा है क्या, इंस्टॉलेशन प्रॉपरली एप्लीकेशन का हो रहा है क्या, अनइंस्टॉलेशन भी हो रहा है क्या, राइट. वो सारी चीजें हम चेक करते हैं एज अ पार्ट ऑफ नॉन फंक्शनल टेस्टिंग. लेटर ऑन नेक्स्ट आता है आपका पिक्चर में, दैट इज द यूजेबिलिटी टेस्टिंग. ओके, ड्यूरिंग दिस टेस्टिंग वी आर वैलिडेटिंग एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव हेल्प, मतलब पर्टिकुलर एप्लीकेशन आपको अगर दिया जाता है एज ए एंड यूजर, तो हमें उसको यूज करने में कितनी हेल्पिंग ऑप्शंस अवेलेबल है. फॉर एग्जांपल आपका हेल्प मेनू हो गया, आपका यूजर मैनुअल हो गया, राइट, हेल्प मेनू हो गया, आपके फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस हो गए. आप अगर कोई भी मोबाइल एप्लीकेशन या वेबसाइट देखते हो तो उसमें पर्टिकुलर आपका हेल्प, बेसिकली मोबाइल में आपका हेल्प सेशन अवेलेबल होता है, वेबसाइट पे आपके फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस, अगर कोई प्रोडक्ट का वेबसाइट है तो उसमें यूजर मैनुअल रहेगा आपका, देन सपोर्ट का कॉन्टेक्ट डिटेल्स रहेगा, राइट. सो सारी चीजें हम चेक करते हैं एज अ यूजेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू. Basically during usability testing, what things all we need to check, we need to check how easily the end user can understand and operate the application. Okay, so this is nothing but comes under your usability testing. So these are the four parts of your main four parts of your system testing. Okay, now you'll see into the notes itself so that you'll have a strong understanding on this front. Okay, fine. Okay, so yes, so now guys please tell me yeah, which testing type we have covered now. Yes, I need answer from your side. GUI testing, user interface. Yeah, these are the types of your system testing. Okay, fine. Yes. This one is your third one, right? First one is sorry, under your black box testing BBT. Yeah, yeah, okay, under black box testing this one is your first type, that is the system testing, and another one second type is your UAT testing, right? Yes, Okay, sir. UAT testing. Okay, so for now we are looking for system testing in detail, right? So please tell me the different types under the system testing just now we have covered. Graphical user interface. Right, GUI testing. Okay, just tell me the high level 4 points. Okay, then next one, functional testing, right? Yes, right, functional testing. Then next one type, guys. Mhm. Non-functional. 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 Right, perfect. Non-functional testing we have covered, right? We have seen. Okay, and the fourth one is your Usability. Usability. yes, usability test. Okay, fine. So under black box testing there are two main testings. One is your system testing, okay, and another one is your UAT testing. Okay, as a part of system testing, who will be performing this testing? Testers, right? Testers. Testers performing this testing. Okay, सो हमारा जो भी रोल रहेगा ना, जो भी प्रोजेक्ट का स्कोप रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम GUI टेस्टिंग भी करते हैं. गाइस प्लीज कीप ओके, whenever required please unmute yourself. Okay, and then non functional testing भी परफॉर्म करते हैं और यूजेबिलिटी टेस्टिंग भी करते हैं. हम बेसिकली GUI टेस्टिंग में क्या टारगेट करते रहे, प्लीज वन बाय वन.
सर GUI टेस्टिंग में जो है ना हम buttons. बटन्स और फॉन्ट Okay, उसके बाद simple we कलर can say look and लुक feel, एंड Visual. यस Visual. right? UI पार्ट, मतलब आपका मोबाइल एप्लीकेशन है तो उस जैसे आप इंस्टॉल करके फ्रंट फेस आपका लॉन्च होता है, जो भी वेबसाइट विजिट करते हो उसका हर एक पेज आपको कैसे दिखता है, ओके, उसका लुक एंड फील, तो उसमें आप डिफरेंट डिफरेंट टेक्स्ट आप चेक कर Change सकते हो, कलर चेक कर buttons, सकते, color, राइट, font, size, बटन्स, icons, यस, images. फॉन्ट्स, यस, फॉन्ट्स चेक कर सकते हो, इमेजेस लाइकवाइज, ओके, वीडियोस वगैरह, मतलब ऑन अ जीयूआई लेवल आपको पता होना चाहिए कि जीयूआई टेस्टिंग कवर्स व्हाट, मतलब जीयूआई टेस्टिंग में हमें चेक क्या करना है, जो भी एज ए यूजर एंड यूजर को विजिबल रहेगा वही सेम पार्ट हमें चेक करना है अंडर द जीयूआई टेस्टिंग। वो सारे पॉइंट मैंने हाईलाइट किए, हर एक पॉइंट का आपका एक टेस्ट सिनेरियो बन सकता है और टेस्ट केसेस वो आगे हम ड्यूरिंग प्रोजेक्ट कवर करेंगे। अभी हमें पता होना चाहिए कि जीयूआई अगर कोई बोलता है हमें तो इट स्टैंड्स फॉर लुक एंड फील ऑफ योर एप्लीकेशन, ओके, परफेक्ट, Yes. ओके, चलो। एंड अंडर फंक्शनल टेस्टिंग हम कौन कौन से पॉइंट कवर अप कर सकते हैं ऑन अ वेरी हाई लेवल, बताइए मुझे अभी एज ऑफ नाउ। Core behavior of application. राइट, कोर बिहेवियर ऑफ आवर एप्लीकेशन, ओके, जो भी एप्लीकेशन है उसका जो भी मेन फंक्शनलिटी उसके ऊपर हम फोकस करेंगे। यहाँ पे हम कौन कौन सी चीजों पे फोकस करेंगे, जो भी आपके ऑब्जेक्ट्स है वो क्या होने चाहिए रे, इनेबल होने चाहिए, राइट, मतलब आपके बटन्स हो गए, टेक्स्ट फॉन्ट, मतलब टेक्स्ट, बट टेक्स्ट जहाँ पे भी आपको टेक्स्ट इनपुट करना है वो डिसेबल है तो आप इनपुट कर सकते हो क्या वहां पे, नहीं है, राइट, नहीं पता. राइट, आपके जो भी लिंक्स है वो विजिबल होने चाहिए, आपका टेक्स्ट टेक्स्ट लिंक का टेक्स्ट प्रॉपरली विजिबल होना चाहिए। ये सारी चीजें अंडर ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स मतलब आपके बटन्स हो गए, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स हो गए, वो एनेबल है क्या, एनेबल है तो वहां पे हम डिटेल्स इनपुट कर सकते हैं क्या, राइट, लाइकवाइज हम उसके डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट के सराउंडिंग डिटेल्स क्रॉस चेक कर सकते हैं, ओके। Then next thing हमने देखा point related to functional testing, that is your database, okay. So database is one of the important parameter, right? तो database में भी हम जो भी transactions हो रहे हैं, right, I'll say transactions, जो भी transactions हो रहे हैं, हम कुछ भी परफॉर्म करते हैं ना वो मोबाइल एप्लीकेशन या वेब एप्लीकेशन, ओके, सारा कुछ डेटा कहाँ कहीं पे तो स्टोर हो रहा है, राइट, तो वो कहाँ पे स्टोर होता है आपका डेटाबेस में, Data manipulation. राइट, सो इसमें हम कौन से ऑपरेशंस कर सकते हैं, डीएमएल, दैट इज डेटा मैनिपुलेशन ऑपरेशंस, सो यस, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज यूज करके हम ये ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। तो उसमें कौन सा हो गया आपका क्रिएशन, फॉर एग्जांपल आपने यूजर क्रिएट किया, यूजर डिटेल्स आपने अपडेट कर दी है, राइट, पर्टिकुलर यूजर डिटेल्स को आपने डिलीट किया, ओके, डिलीट किया, राइट, लाइकवाइज जो भी आपके बेसिक लेवल के ऑपरेशंस है, आप अकाउंट क्रिएट करते हो, उसमें डिटेल्स अपडेट करते हो, डिटेल्स डिलीट करते हो, राइट, लाइकवाइज जो भी आपके ट्रांजेक्शन्स आप फ्रंट एंड पे यूआई साइड पे परफॉर्म करते हो ना, सिमिलर डिटेल्स आपके कहाँ पे रिफ्लेक्ट होते हैं, डेटाबेस में। सो एज अ पार्ट ऑफ डेटाबेस टेस्टिंग आप ये सारी चीजें उसमें फोकस करते हो या कवर करते हो, ओके। देन अंडर दिस फंक्शनल टेस्टिंग हमने वन मोर एक टेस्टिंग का टाइप मतलब टेस्ट कर सकते हो किस चीज के लिए, एरर के लिए, ओके। सो जो भी फंक्शनल साइड पे आप एरर्स के लिए क्या चेकआउट कर सकते हो, जैसे आपने रॉन्ग यूजर नेम पुटअप किया, ओके, रॉन्ग यूजर नेम पुटअप किया तो आपको एरर मैसेज क्या आना चाहिए रे, यस गाइस, Invalid username. Yes. Invalid user. यूज Invalid user. इनवैलिड यूजर नेम और जो भी आपने पुटअप किया है, फॉर एग्जांपल पासवर्ड, पर्टिकुलर एरर आपको शोकेस होना चाहिए, राइट, तो वो पर्टिकुलर एरर टेस्टिंग आल्सो हम चेक करते हैं एज अ पार्ट ऑफ आपके फंक्शनल टेस्टिंग। देन लेटर ऑन कैलकुलेशन पार्ट इन्वॉल्व होता है इसमें, देखिए जो भी आपका वेबसाइट है, राइट, ओके, कैलकुलेशंस पार्ट इन्वॉल्व होता है, राइट, जो भी आपका वेबसाइट है उसका अगर स्कोप रिलेटेड टू कैलकुलेशन है, हर एक वेबसाइट में कुछ ना कुछ कैलकुलेशन का पार्ट इन्वॉल्व होता है, बैंक है तो उसमें मोर कैलकुलेशंस रहेंगे, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है तो उसमें और ज्यादा रहेगा, राइट, लाइकवाइज तो आपको वहां पे है ना बेसिकली कैलकुलेशंस पार्ट पे फोकस करना है, मतलब फॉर एग्जांपल
आपने कोई ट्रांजेक्शन किया, पेमेंट करके चेक किया, आपने 1000 रुपीज का पेमेंट किया तो आपके अकाउंट से 1000 रुपीज ही कट हो रहे हैं क्या, या सेम डेटा आपका 1000 रुपीज का डेटा डेटाबेस में रिफ्लेक्ट हो रहा है क्या. Likewise this type of testing comes under your calculations. Simple as of now, addition, subtraction, multiplication and division, right? These are the basic operation, and based on this हम different बाकी की combination of operations भी चेक कर सकते हैं एज अ पार्ट ऑफ टेस्टिंग. ओके, सो ये आपके हो गए कैलकुलेशंस या मैनिपुलेशंस टेस्टिंग. देन लिंक एग्जिस्टेंस एक हमने चेक किया था. लिंक, ओके, आई विल राइट शॉर्ट फॉर्म सो दैट आपको याद रहे. लिंक मतलब लिंक कितने टाइप के हो सकते हैं आपके. आपने किसी लिंक के ऊपर क्लिक किया तो विद इन अ सेम पेज आपका अगर लिंक ओपन हो रहा है दैट मीन्स आपका इंटरनल लिंक है. देन सेकेंड टाइप उसका हो गया आपका एक्सटर्नल लिंक. आपको चेक करना है बेसिकली पर्टिकुलर लिंक के ऊपर क्लिक करके कि वो लिंक कहाँ पे जा रहा है, राइट. अक्रॉस द रिक्वायरमेंट हमें क्रॉस वेरीफाई करना है. एंड अनदर वन इज योर एक्सटर्नल, इंटरनल, अनदर वन इज योर ब्रोकन. कोई पर्टिकुलर या ब्रोकन लिंक, राइट. पर्टिकुलर लिंक कोई आपके फ्यूचर स्कोप के लिए है क्या, या लिंक तो है बट वो मतलब काम नहीं कर रहा, राइट. ओके, या तो वो फ्यूचर स्कोप के लिए हो सकता है लिंक देके रखा है बट वो अभी एज ऑफ नाउ कुछ काम का नहीं, या वो ब्रेक हो सकता है, राइट. उसकी फंक्शनलिटी ब्रेक हो सकती है तो वो भी हमें एज अ फॉल्ट कंसिडर करना है, एज अ डिफेक्ट कंसिडर करना है, राइट. एंड वन मोर इम्पोर्टेंट दैट इज कुकीज एंड सेशंस, राइट. कुकीज एंड सेशंस ये बेसिकली क्या है, जो भी आपका ब्राउजर है, ओके, वहां पे लोकली आपका ये डेटा क्या होगा रे, स्टोर होगा. अगर हम कुकीज की बात करते हैं तो ओके. एंड अगर हम सेशंस की बात करते हैं तो आपके जो भी एप्लीकेशन है उसका पर्टिकुलर टाइम आउट रहता है, राइट. दैट कम्स अंडर योर सेशंस. ओके, सो ब्राउजर की जो भी कुकीज है इट कम्स अंडर योर लोकल डेटा स्टोरिंग. एंड जो भी आपका सेशंस है इट रिलेट्स टू योर सेशन टाइम आउट. आपने अगर बैंकिंग का एप्लीकेशन लॉगिन किया है, कोई सिक्योर एप्लीकेशन लॉगिन किया है, तो वो स्पेसिफिक टाइम में अगर आपने कुछ भी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं की तो एप्लीकेशन क्या हो जाएगा रे आपका, लॉग आउट हो जाएगा, राइट. टाइम आउट हो जाएगा, आपको वापस से री इन करना पड़ता है. सो दीज आर द सम ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू योर नॉन फंक्शनल टेस्टिंग. थर्ड वन टाइप हमने कौन सा देखा था गाइस. यस, hello. Non-functional testing, right. So yeah, as a part of non-functional testing हम क्या क्या चीजें चेक कर सकते हैं. one of the important is performance चेक कर सकते हैं, right. performance चेक कर सकते हैं, okay fine. ओके, परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं. परफॉर्मेंस में भी हम क्या चेक कर सकते हैं, पर्टिकुलर एप्लीकेशन पे कितने नंबर ऑफ यूजर्स का लोड अलाउ है. पर्टिकुलर एप्लीकेशन पे अगर सडनली नंबर ऑफ यूजर्स आते हैं तो वो एप्लीकेशन क्रैश हो रहा है क्या, कितने नंबर ऑफ यूजर्स का वॉल्यूम पर्टिकुलर एप्लीकेशन हैंडल कर सकता है. सो इसी ये टेस्टिंग परफॉर्म करने के लिए ना कि लाइक हमारे पास टूल्स अवेलेबल होते हैं एज अ नॉन फंक्शनल टेस्टिंग, उसका यूज करके हम परफॉर्मेंस टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं. Then second one important is your security testing also comes under non performance. तो यहाँ पे भी particular tools का use करके ही हम check करते हैं कि web application secure है या नहीं, right. Okay, so yes, this is also part of your non functionality testing. Then आपका recovery हो गया. ओके, रिकवरी टेस्टिंग, रिकवरी हो गया आपका. देन आपका कंपैटिबिलिटी हो गया. आपको ये टर्मिनोलॉजीज एज ऑफ नाउ पता होनी चाहिए. कंपैटिबिलिटी हो गया, राइट. देन आपका इंस्टॉलेशन हो गया पर्टिकुलर एप्लीकेशन का. देन आपका कॉन्फ़िगरेशन हो गया. बट कोई एप्लीकेशन है जिसको कॉन्फ़िगरेशन की रिक्वायरमेंट है. फॉर एग्जांपल आप कोई नाउडेज कैमरास देखते हो, कौन से आपके सीसीटीवी कैमरास देखते हो जो वाईफाई के साथ कनेक्ट होते हैं, या कोई आईओटी डिवाइस देखते हो, कोई एलेक्सा जैसा डिवाइस देखते हो, राइट. या कोई भी ऐसा डिवाइस है जिसका हमें कॉन्फ़िग भी करना पड़ता है फ्रॉम एप्लीकेशन साइड. सो उस लेवल पे भी हमें टेस्टिंग करना पड़ता है. सो जितने भी टेस्टिंग टाइप्स है ना गाइज, इट टोटली डिपेंड्स कि प्रोजेक्ट कौन से टाइप का है, उसके ऊपर पूरा डिपेंड होता है कि हमें किस लेवल का टेस्टिंग करना है. और जो भी टेस्टिंग करना है ना उसका स्कोप डॉक्यूमेंटेशन में डिफाइन होता है. हम टीम के साथ डिस्कस करते हैं इस पॉइंट पे. ओके, सो या दिस इज ऑन दी योर. यहाँ पे एक सैनिटेशन एक होता है या गार्बेज टेस्टिंग एक होता है. ओके,
मतलब जो भी एडिशनल फीचर्स है, ओके, जो भी एडिशनल फीचर्स है वो हमें यहाँ पे बेसिकली चेक करना पड़ता है, एडिशनल फीचर्स, ओके, फीचर्स, ओके, और मॉडल्स अपार्ट फ्रॉम योर रिक्वायरमेंट, जो बेसिकली रिक्वायरमेंट का आपका पार्ट नहीं है, राइट, वो फीचर्स हमें नॉट पार्ट ऑफ योर रिक्वायरमेंट, ओके। सो कुछ कुछ एडिशनल फीचर्स ऐसे होते हैं ना जो ऑलरेडी फ्यूचर स्कोप के लिए डेवलप करके रखते हैं, या फ्रॉम द डेवलपमेंट साइड उन्होंने डेवलप किया होता है, तो वो भी फीचर्स हमें ट्रेस आउट करने पड़ते हैं, राइट, एज अ पार्ट ऑफ गार्बेज या सैनिटेशन, sanitation testing, okay. So yeah, this is on the non-functional testing type, and one of the important, that is the usability, क्योंकि कोई भी एप्लीकेशन बना है, राइट, सो वो विद रिस्पेक्ट टू एंड यूजर ही बना होता है, राइट, सो हमें ऑलवेज कीपिंग इन माइंड जो भी एंड यूजर है उसी को हमें माइंड में पुट रख के ये एप्लीकेशन के ऊपर फोकस करना पड़ता है। सो यूजेबिलिटी में हम क्या सारी चीजें चेक करते हैं, बेसिकली जो भी एप्लीकेशन है या वेबसाइट है वो कितनी यूजर फ्रेंडली है, राइट, वहां पे हमें क्या अवेलेबल होना चाहिए, उसके पर्टिकुलरली हेल्प अवेलेबल होना चाहिए, हेल्प मेनू होना चाहिए, राइट, हेल्प मेनू होना चाहिए, देन यूजर मैनुअल होना चाहिए, किस कोई अगर इंस्टॉलेशन रिक्वायर्ड है तो लेटर ऑन पर्टिकुलर जो एप्लीकेशन है उसमें बहुत सारे हमें क्वेश्चंस रहते हैं। आप अगर कोई भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म देखते हो, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, तो वहाँ पे भी पर्टिकुलर सेट ऑफ क्वेश्चंस किसी ने पुट अप किए होते हैं, वहाँ पे कम्युनिटी होता है, राइट, कम्युनिटी होता है, बेसिकली कम्युनिटी चैनल्स होते हैं जहाँ पे आप क्वेश्चंस पुट अप कर सकते, कम्युनिटी फोरम्स होते हैं, ओके, फोरम्स होते हैं जहाँ पे आप रिलेटेड टू दैट एप्लीकेशन, रिलेटेड टू दैट वेबसाइट आप क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो। देन आपको सपोर्ट के लिए कॉन्टैक्ट्स होते हैं, राइट, सपोर्ट के लिए कॉन्टैक्ट फॉर्म्स होते हैं, वो पर्टिकुलर डिटेल्स आप अंडर द यूजेबिलिटी टेस्टिंग चेक कर सकते हो। सो दीज आर द मेजर testing types which we need to cover under the system testing, okay. Yeah, so this is for on the topic side. So any question?